Good morning, dear students. Dear students, in the previous class, we have already started with the new chapter, that is body fluids and its circulation. We said that there are main types of body fluids circulating in our body, that includes blood and lymph. But apart from blood and lymph, there are several other extracellular fluids which are also very important to our body, which included the synovial fluid present in the joints, the vitreous fluid which is present in our eyes, as well as the cerebrospinal fluid which is present in our the cerebral hemispheres, or you can say in the spinal cord. So in this way we have said that there are different types of fluids present. Out of them, mainly in this chapter, we were discussing about the two fluids, that is blood and the lymph. For blood, we have said so far that blood consists of blood plasma and the formed elements. The blood plasma is the fluid part of the blood, pale yellow in its color, and blood plasma will be including several types of proteins, several type of clotting factors. It will include a large amount of water. There were some of the waste substances, some of the hormones will also be present in the blood plasma. The next component of our blood is the formed elements, which we even say that the different types of blood corpuscles that are present in the blood are included in the formed elements. So formed elements of our blood, they include, it includes erythrocytes, leukocytes and thrombocytes. The formed elements of our blood includes the erythrocytes, which are the RBCs, the leukocytes, which are the WBCs, and the thrombocytes, which are the blood platelets. Okay, and together they constitute 45% of our blood. Okay, so actually 55% is our blood plasma and rest of the 45% is our blood cells or the formed elements. So let us now begin with the first type of formed element, that is the erythrocyte. The erythrocytes, or we commonly use the word RBC, that is red blood cells or red blood corpuscles. अब जो erythrocytes होते हैं, these are the most abundant cells of our body. हमारी बॉडी में अगर कोई सेल सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो है erythrocytes. So we will mention the first thing, that is they are the most abundant cells. Now if we talk about the number of erythrocytes, कि हमारी बॉडी में कितने erythrocytes होते हैं, तो सबसे पहले हम थोड़ी नंबर की बात कर लेते हैं और फिर हम उसके शेप और साइज की बात करेंगे. So number of erythrocytes, the total number of erythrocytes is known as total RBC count. क्या कहा जाता है? Total RBC count. Now this total RBC count in a healthy person, in a healthy individual, is going to be 5 to 5.5 million RBCs per cubic millimeter. 5 to 5.5 million एक healthy adult person में 5 to 5.5 million RBCs होते हैं per cubic millimeter, and this total number of RBCs present is known as total RBC count. ठीक है, ये नंबर थोड़ा बहुत मेल्स और फीमेल्स में फ्लक्चुएट होता है. In females it is 4.5 to 5 million per cubic millimeter, and in the case of males it is 5 to 5.5 million.
ये इसीलिए वेरिएबल होता है बिकॉज इन फीमेल्स देर इज अ साइकिल विच इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यू टू विच सम अमाउंट ऑफ ब्लड इज ऑलवेज लॉस्ट इन द फीमेल्स एंड देयरफॉर the count is slightly different for males and females. We use it generally only, that is 5 to 5.5 million RBCs per cubic millimeter. Now, if we talk about the number, we further say that there can be conditions in which the RBC count can increase. So, such increase in RBCs, abnormal increase in RBC is known as polycythemia. Abnormal increase in RBCs is known as polycythemia, whereas decrease in the RBC count is known as erythrocytopenia. Here are two words that terminologies are not given in your textbook. I am just explaining you that some of the conditions the RBC count increases, right? अगर आप कोई प्लेन से अगर आप कोई एल्टीट्यूड पे जा रहे हो, राइट, कोई हाइट पे जा रहे हो, तो इस केस में क्या होता है कि आपको ब्रेथलेसनेस फील होती है। तो वहां पे ऐसा होता है कि एट हायर एल्टीट्यूड हमारा आरबीसी काउंट जो है वो इंक्रीज होता है टू कोप अप विद द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में ठीक से ऑक्सीजन हर एक सेल तक पहुंचे, इसकी वजह से आरबीसी का काउंट थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो इंक्रीज इन आरबीसी इज कॉल्ड पॉलीसाइथीमिया। और कई बार क्या होता है कि हम बहुत से आरबीसी लॉस भी कर लेते हैं एंड दैट डिक्रीज इज नोन एज erythrocytopenia. However, more increase or more decrease in RBCs can be very much fatal to our body. It can severe cases, it can even lead to the death, and therefore the amount of RBC should always be maintained. So that was about the number of RBCs. अगर हम RBCs के साइज की बात करें तो RBCs are nearly 7 micrometer in their size. साइज ऑफ RBCs जो होती है वो 7 माइक्रोमीटर तक की साइज होती है। और अगर हम शेप की बात करें तो RBCs का जो शेप है बाइकॉन्केव होता है इन द केस ऑफ मैमल्स, बाइकॉन्केव इन मैमल्स। मैमल्स में आरबीसीज जो होते हैं वो बाइकॉन्केव होते हैं। और दूसरी चीज, यहाँ पे जो आरबीसीज प्रेजेंट है उन आरबीसीज में और एक प्रॉपर्टी है कि मैमल्स के जो आरबीसी होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। सो इन्यूक्लिएटेड मतलब विदाउट न्यूक्लियस, इन्यूक्लिएटेड इन मोस्टली मैमल्स। ठीक है, मोस्टली सभी मैमल्स में इन्यूक्लिएटेड होते हैं, पर अगर आप कैमल की बात करो तो सिर्फ कैमल ऐसा मैमल है जिसमें आरबीसीज में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस तो नहीं होता, साथ साथ में ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो भी नहीं होते आरबीसीज के अंदर। अगर हम हमारे आरबीसीज की बात करें तो न्यूक्लियस भी नहीं है और सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होते। और दैट इज अबाउट द साइज। तो साइज जो है वो 7 माइक्रोमीटर। शेप की बात करें तो बाइकॉन्केव होता है जनरली और अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। अब आरबीसीज के दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो आरबीसीज जो है have presence of hemoglobin which is an iron complex। hemoglobin जो है वो एक आयन कॉम्प्लेक्स है and that imparts red color to the RBCs, राइट। वैसे तो आरबीसीज जो है वो पेल येलो कलर के ही होते हैं, पर उनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होने की वजह से आरबीसीज जो है वो पेल येलो की जगह पे रेड अपीयर होते हैं। और हमारे ब्लड में इतने सारे आरबीसीज हैं कि पूरा ब्लड जो है वो रेड अपीयर होता है जस्ट ड्यू टू presence of the RBCs. The RBCs have a presence of the iron containing complex और इस कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में
जो हीम पोर्शन है वो आयन ग्रुप है, जबकि ग्लोबिन पोर्शन जो है वो एक प्रोटीन पार्ट है। सो हीमोग्लोबिन इज एक्चुअली अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, जिसमें आयन पार्ट भी है और प्रोटीन पार्ट भी होता है। और हमने पता ही है कि हीमोग्लोबिन एक क्वाटरनरी प्रोटीन का भी एग्जाम्पल है, जिसमें 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आरबीसी का काउंट डिक्रीज होने का रीजन आरबीसी के प्रॉपर प्रिकर्सर्स प्रेजेंट ना होना वो भी होता है, जैसे कि विटामिन B12, फॉलिक एसिड, ये चीजें अगर आपके ब्लड में कम है तो ऐसा हो सकता है कि आरबीसी काउंट जो है वो कम हो जाए। रेगुलर फॉलिक एसिड टैबलेट्स लेने से आरबीसी का काउंट इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, आरबीसी फॉर्म कहाँ पे होते हैं? तो आरबीसी फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन बोन मैरो। पर उसके पहले एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में कितना हीमोग्लोबिन होता है? सो अ हेल्दी पर्सन हैज 12 to 16 grams of hemoglobin per 100 ml of blood। और नॉर्मल हेल्दी पर्सन जो है उसमें 12 to 16 ग्राम्स हीमोग्लोबिन होता है फॉर एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। अगर वैल्यू इससे कम है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक प्रॉपर सप्लीमेंट्स, टेक प्रॉपर फूड फॉर इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन योर ब्लड। Formation of RBC takes place in RBC formation occurs, or you can say takes place in bone marrow। RBC जो है वो बोन मैरो में फॉर्म होता है, पर एक्चुअली ये साइट्स थोड़े बहुत अलग है। इसमें क्या है कि बर्थ से पहले जब फिटस मदर के वूम्ब में होता है तो आरबीसी बनने की साइट यॉर्क सैक होती है इन द इनिशियल एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। मतलब बहुत ही इनिशियल टाइम में जब वो फ्यू वीक्स का है, राइट, प्रेगनेंसी सिर्फ थोड़े वीक्स की है, तो उस टाइम पे आरबीसी यॉर्क सैक में से बनते हैं। लेटर ऑन आरबीसी लीवर और स्प्लीन में से भी बनते हैं, राइट। लीवर और स्प्लीन रेस्ट ऑफ द पूरा जो जेस्टेशन पीरियड होता है, प्रेगनेंसी ड्यूरेशन होता है, उसमें लीवर और स्प्लीन में से आरबीसी बनता है। पर बर्थ के बाद आरबीसी फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। और आरबीसी का ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इज द स्प्लीन। मतलब आरबीसी जो है वो डिस्ट्रक्शन जो होता है, उनका ब्रेकडाउन होता है, वो स्प्लीन में होता है, क्योंकि आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज है। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज। ठीक है, और 120 डेज के बाद रिप्लेसमेंट जो है वो आरबीसी का हो ही जाता है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। अगर आरबीसी के फंक्शन की बात करें तो रेड ब्लड सेल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस। सो फंक्शन हम यहां पे लिख देते हैं, फंक्शन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मेनली ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल भी कैरी नहीं होता थ्रू आरबीसी। आरबीसी ऑल्सो कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, and RBCs carry mostly the oxygen. Maximum amount of oxygen will be taken up by the hemoglobin and it will be transported to the all cells of the body. So that was about the whole type of formed element, which is only the erythrocyte. Next we are also going to talk about the leukocytes and the thrombocytes. So once we have discussed about the erythrocytes, that is the red blood cells, now we are moving on to the next type of formed elements present in our blood, and these are the leukocytes. The leukocytes are the cells which are commonly known as white blood cells, okay. So erythrocytes were the red blood cells and the leukocytes are the white blood cells. The most important thing is that they lack hemoglobin. They lack hemoglobin and therefore they are not going to appear
red. Okay, so red blood cells appeared red because of hemoglobin. Here there is absence of hemoglobin, therefore white blood cells are not going to appear red. Instead they are going to appear transparent. So they lack the hemoglobin. If we talk about the number of leukocytes, the number of leukocytes is, that is total leukocyte count, TLC. Total leukocyte count is going to be 6,000 to 8,000 per cubic millimeter. So you can imagine that the number of leukocytes is 6 to 8,000 per cubic millimeter, means the number of leukocytes is very less as compared to the number of the erythrocytes. Okay, an increase in leukocyte, increase in the WBC, an abnormal increase in WBC is known as leukocytosis. Increase is called leukocytosis, whereas decrease in WBC is known as leukocytopenia. The increase in the white blood cells is going to occur during the allergic conditions, right? कोई एलर्जी होती है, या तो फिर कोई इन्फेक्शन होता है, या तो डिसीज होता है जैसे कि कैंसर, राइट? तो ऐसे डिसीजेस, ब्लड कैंसर जैसे डिसीजेस में जो WBC का नंबर है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है, और ऐसे भी कंडीशंस होते हैं जहाँ पे WBC काउंट जो है वो बहुत ही कम हो जाता है. सो लेस नंबर ऑफ WBC इज ल्यूकोसाइटोपेनिया एंड इंक्रीज इज नोन एज leukocytosis. Now, after discussing about the number, if we talk about the size of the WBCs, तो WBCs जो है उनकी साइज बड़ी होती है 12 to 20 माइक्रोमीटर, राइट? RBCs जो थे वो हार्डली 7 माइक्रोमीटर थे, जबकि उनसे ऑलमोस्ट डबल साइज के होते हैं WBCs. ठीक है, RBC was 7 micrometer, but WBC will be 12 to 20 micrometer in its size. WBCs are having a amoeboid shape. You can say shape is irregular and amoeboid, जिसकी वजह से वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर भी स्क्वीज होके दे कैन पास ऑन, राइट? कई बार WBCs कैपिलरीज में से मूव आउट होके टिश्यू में भी एंटर होते हैं, और इस मैकेनिज्म को कहा जाता है डायपिडेसिस. दैट इज स्क्वीजिंग ऑफ द WBCs टू जस्ट मूव आउट ऑफ द कैपिलरी इनटू द टिश्यू स्पेसेस इज नोन एज डायपिडेसिस. तो शेप इनका अमीबॉइड शेप कह सकते हैं, या तो इरेग्युलर शेप भी कह सकते हैं. Some of them are somewhat round in its shape also. If we talk about the types of WBC, तो WBCs mainly दो types के होते हैं. Types of WBCs, these are granulocytes and agranulocytes. तो पहले हम granulocyte की बात करेंगे. Granulocytes are the cells which will be having presence of granules in their cytoplasm. इनमें स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स होती है जो इनके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है. These granulocytes are of three types, which is eosinophil, basophil and neutrophil. तीन तरह के ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, eosinophil, basophil और neutrophil. तो eosinophils की पहले बात करते हैं. Eosinophils, their number increases in allergic condition. Eosinophils का जो नंबर है वो एलर्जिक कंडीशंस में बढ़ जाता है, राइट? हे फीवर है, अस्थमा है, ऐसे डिसीजेस में eosinophil count is going to get increased. The amount of eosinophils present are just 2 to 3%. सारे ही WBCs को कंसिडर करो तो इनमें से हार्डली 2 to 3% जो है वो eosinophil cells होते हैं. Eosinophils are stained by the acidic dye. तो एसिडिक डाइज यूज करने पर eosinophil के जो ग्रैन्यूल्स हैं they will be taking up the stain, right? And this stain itself is known as eosin. So as they get stained by eosin, these cells are known as eosinophils. तो आपको परसेंटेज याद रखने हैं, 2 to 3%
इंक्रीज इन द एलर्जिक रिएक्शंस, एलर्जिक कंडीशंस में इंक्रीज हो जाते हैं, और स्टेनिंग इनका होता है बाय द एसिडिक डाई। दूसरी चीज ये है कि दीज आर नॉन फेगोसाइटिक, मतलब फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस नहीं करते, इंस्टेड दे हैव लाइसोसोम लाइक एक्शन, मतलब एंजाइम्स रिलीज करते हैं नियर द पैथोजन, नियर द बैक्टीरिया, दे रिलीज द एंजाइम्स, and through this enzymes it will be digesting up the nearby pathogen or breaking it into smaller parts. तो lysosomal type reaction होता है eosinophils का, ठीक है। अगर न्यूक्लियस की बात करें तो eosinophils के न्यूक्लियस जो होते हैं they are having two lobes, so bilobed nucleus is present, bilobed nucleus। तो यहाँ पे हम एक eosinophil का डायग्राम बना देते हैं। eosinophil cell will be having a bilobed nucleus and these are going to be the granules present in the cytoplasm. So irregularly shaped cell, bilobed nucleus and granules in the cytoplasm will be the structure of eosinophil. After eosinophil, the next type of leukocyte is the basophil. बेसोफिल्स जो है दे रिलीज हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, राइट। तो ये जो बेसोफिल्स होते हैं ये केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं जैसे कि हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन, राइट, जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है और उसे कंस्ट्रिक्ट करता है। इनका परसेंटेज जो है वो हार्डली 0.5 to 1%, समटाइम्स इवन नॉट फाउंड, राइट। कई बार ऐसा होता है कि बेसोफिल का काउंट बहुत ही ज्यादा बहुत ही कम होता है, सो द अमाउंट ऑफ बेसोफिल्स प्रेजेंट इज वेरी लेस एंड न्यूक्लियस हैज 3 lobes, या तो फिर हम कह सकते हैं एस शेप्ड न्यूक्लियस, एंड दे आर stained by the basic dye। तो बेसोफिल्स भी नॉन फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं और ये मास्ट सेल्स जैसे होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में जैसे मास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं वैसे ही हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हिपेरिन भी रिलीज करते हैं, और कनेक्टिव टिश्यू में जो काम मास्ट सेल्स करते हैं वही काम यहाँ पे बेसोफिल्स करते हैं। 0.5 to 1% इज देयर नंबर एंड देयर न्यूक्लियस इज एस शेप्ड, ठीक है, और स्टेन्ड बाय द बेसिक डाई। द थर्ड टाइप ऑफ ग्रैन्युलोसाइट प्रेजेंट विल बी द न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं दे आर मैक्सिमम इन नंबर, 60 to 65%, 60 to 65% WBCs जो है वो न्यूट्रोफिल्स हैं, एंड दीज आर मोटाइल एंड फेगोसाइटिक, मतलब इनका काम जो है वो फेगोसाइटोसिस करना, ये इनका फंक्शन होता है, मतलब कोई भी बैक्टीरिया को एनगल्फ करके फिर किल कर देना, दैट इज द रोल ऑफ द न्यूट्रोफिल्स। दे आर stained weakly by both acidic and basic dye। कोई भी डाई यूज कर लो पर इनका जो स्टेन है वो काफी वीक होता है, सो दे आर वीकली स्टेन्ड बाय बोथ acidic dye as well as basic dye। So that was about the 3 types of granulocytes। ग्रैन्युलोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स होती है इसीलिए उन्हें ग्रैन्युलोसाइट्स कहा जाता है, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। अब हम आगे बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स व्हिच आर कॉल्ड एज ए ग्रैन्युलोसाइट। ए ग्रैन्युलोसाइट के साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं होती, ठीक है, और ये 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट आर द लिम्फोसाइट्स। आफ्टर न्यूट्रोफिल अगर किसी सेल्स का नंबर बहुत ही ज्यादा है, राइट, दैट इज लिम्फोसाइट्स, 20 to 25%, राइट, नियरली राउंड शेप होता है, राउंड शेप न्यूक्लियस, राइट, एक सिंगल न्यूक्लियस राउंड शेप का न्यूक्लियस होता है
और सेल जो है वो भी साइज में काफी छोटे होते हैं. लिम्फोसाइट्स आर वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल्स दैट आर प्रेजेंट. So number is more 20 to 25%, but the cells are round and the nucleus is also round. Lymphocytes are of two types, B lymphocytes and T lymphocytes, and they are essential for formation of antibody. Antibody production का ये mainly काम करते हैं, and these are non-motile and non-phagocytic. Phagocytic cells जो है वो सिर्फ दो ही है यहाँ पे, एक न्यूट्रोफिल्स है और एक दूसरे सेल्स की हम बात कर रहे हैं मोनोसाइट्स. ये दो ही फेगोसाइटिक है, बाकी सारे फेगोसाइटिक नहीं है. दे हैव अदर रोल. यहाँ पे एंटीबॉडी प्रोडक्शन का काम लिम्फोसाइट्स का होता है. एंटीबॉडी एक तरह का प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पैथोजन एंटर होने पर उससे डिफेंस फाइट करने के लिए बनाया जाता है. So antibody formation is the function of lymphocytes. Lastly, we have monocytes, and monocytes will be, अगर इनके अमाउंट की बात करें तो मोनोसाइट्स का अमाउंट थोड़ा ज्यादा होता है. 2 to 10% of monocytes are present, and mainly monocytes जो है वो phagocytic cells होते हैं, and they can be considered to be the largest of all. राइट साइज में मोनोसाइट्स बहुत ही बड़े होते हैं. अगर मोनोसाइट्स किसी टिश्यू में चले जाए तो फिर उसे मैक्रोफेजेस कहा जाता है. मोनोसाइट्स चेंज टू मैक्रोफेजेस वंस दे एंटर इनटू द टिश्यू. तो यहाँ पे ए ग्रैन्युलोसाइट्स पे दो सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं और मोनोसाइट्स हैं. ठीक है. नाउ आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट द ल्यूकोसाइट्स, हम एक थर्ड टाइप के सेल्स की भी बात कर लेते हैं, which are included in the formed elements, and these are thrombocytes. Thrombocytes को हम regularly platelets भी कहते हैं. तो platelets जो है वो पूरे सेल नहीं है, instead they are cell fragments. Cell fragments होते हैं ये, और non nucleated होते हैं, मतलब न्यूक्लियस नहीं होता इनके पास. ठीक है. and their shape is nearly flat. These are cell fragments and non-nucleated, मतलब न्यूक्लियस नहीं है और एकदम ही फ्लैट सेल्स होते हैं. ये ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं. हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. जब भी हमें कोई इंजरी होती है, आफ्टर सम टाइम वी स्टॉप ब्लीडिंग, राइट. तो वो ब्लीडिंग स्टॉप करने का जो फंक्शन है वो प्लेटलेट्स का होता है. नंबर जो है वो उनका आरबीसी से कम पर डब्ल्यूबीसी से ज्यादा है. सो 1,50,000 to 3 lakh per cubic millimeter. That is their number. So 1,50,000 to 3 lakh per cubic millimeter is the number of the thrombocytes. सारे ही तरह के जो सेल्स हैं, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, सभी बोन मैरो में से ही बनते हैं. राइट. ये जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं जिस सेल में से बनते हैं उन्हें कहा जाता है मेगा कैरियोसाइट्स. दे form from megakaryocytes. Megakaryocytes are the cells which are resulting into formation of the thrombocytes, or we can say platelets. तो formed elements में erythrocytes, leukocytes and the third thing that is thrombocytes include होगा. In the next lecture we will talk about the blood grouping, ABO blood grouping and RH grouping के बारे में हम डिस्कस करेंगे.